So yesterday's class we were doing Bernoulli's theorem and we did some application of Bernoulli's theorem as well. So we'll be doing two more application. One is Venturi meter and other is Torricelli's experiment, which was again an application of Bernoulli's theorem only. So इन दोनों को करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कल पढ़ रहे थे उसी के. So Venturi meter, it is a device used for measuring the speed of incompressible liquid and rate of flow of liquid through pipes. Its working is based on Bernoulli's theorem. ठीक है ना? So let's say हमारे पास एक Venturi meter है यहाँ पे. It consists of two coaxial white tubes. Okay, A and C. तो दो ट्यूब है, एक ये A हो गया और दूसरा सी हो गया. कोएक्सियल वाइड ट्यूब है ना. कोएक्सियल मतलब इनका एक्सिस सेम है. अगर यहाँ पर से इनका एक्सिस चेक करोगे तो इनका एक्सिस सेम. मैनोमीटर, मोनोमीटर गलती से लिखा हुआ है, मैनोमीटर होगा. सो a manometer in the form of U tube is attached to it with one arm at the wider neck point of tube A and the other arm at the narrow middle point of the tube B. तो देखो एक पॉइंट इस यू ट्यूब का यहाँ वाइडर वाला जो ट्यूब है वहां पे लगा हुआ है और दूसरा जो नैरोअर वाला जो ट्यूब है उस पे लगा हुआ है दूसरा एंड. A low density liquid is used in manometer which may not mix with liquid flowing in the tubes of Venturi meter. तो इसका जो डेंसिटी है is low, so it will not mix with the liquid which is flowing in the Venturi meter. Now working in theory, connect this Venturi meter horizontally to the pipe through which the liquid is flowing with steady flow. Note down the difference of liquid column in two arms of U tube. Let it be H. तो हम लोग को यहाँ पे जो जो डिफरेंस है दोनों के हाइट में, ये फर्स्ट वाला जो और सेकंड वाला जो लेग है इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है दैट इज H. लेट से रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड थ्रू द पाइप. तो जो पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है. इसमें जो लिक्विड यूज कर रहे हैं उसका डेंसिटी रो एम हो गया. लिक्विड density of liquid in U tube. A1 A2 is the area of cross section of the tube at A and B. तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इस पॉइंट पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है. Velocity of the liquid flow at section A and B is given as V1 and V2. यहाँ पे स्पीड V1 है, यहाँ पे स्पीड V2 है. P1 and P2 are the pressure at A and B. यहाँ पे प्रेशर P1 और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 हो गया. Let V be the volume of the liquid flowing per second, that is rate of flow of liquid through the pipe. Capital V से हम लोग rate of flow of liquid per second through the pipe हम लोग नोट कर रहे हैं. Now, according to equation of continuity, so the rate of flow of liquid is constant. A1 V1 will be equal to A2 V2, है ना. सो इससे आ जाएगा A1 by A2 is equal to V2 by V1 और V1 is equal to, है ना, जो V1 अगर हम लोग को निकालना होगा कैपिटल V by A1 हो जाएगा और V2 is कैपिटल V by A2. सो यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो, तो बिकॉज H कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब दोनों में H सेम है. H अगर सेम है तो दोनों के तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैंसिल हो जाएगा. So P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. ठीक. अब P1 minus P2 is half rho V2 square minus V1 square हो जाएगा. So half rho V1 square कॉमन ले लेंगे तो V2 by V2 square by V1 square minus 1. अब V2 by V1 क्या है, A1 by A2 के बराबर है, यहाँ रिप्लेस कर लो तो हाफ रो V1 स्क्वायर A1 by A2 होल स्क्वायर माइनस 1. ये हमारा डिफरेंस इन प्रेशर P1 माइनस P2 निकल गया. नाउ दिस प्रेशर डिफरेंस cause the liquid in arm 2 of tube connected at the narrow tube B to rise in comparison to other arm 1. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, जो हम लोग P1 माइनस P2 कर रहे हैं, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2,
ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो जी एच के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसका जो डेंसिटी है रो एम इंटू जी इंटू ये जो डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों के हाइट के बीच में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन P1 माइनस P2, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ट्यूब ए एंड द ट्यूब बी। और P1 माइनस P2 ऑलरेडी हम लोग वहां पे निकाल रखे हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, इसके पहले वाले स्लाइड में जो हमारा इक्वेशन था, राइट। यहाँ पे देखो, सो ये हमारा ऑलरेडी P1 माइनस P2 निकल रखा है ना, 23rd इक्वेशन। और दूसरा यहाँ पे P1 माइनस P2 हम लोग H रो जी हम लोग निकाले हुए, दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब H रो एम इंटू जी इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू, है ना, सो ये देखो 2H रो एम इंटू जी, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2H रो एम इंटू जी डिवाइडेड बाय रो, ओके। और उसके बाद A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 1/2, ये अलग से हम लोग दिखा रहे हैं। सो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ द लिक्विड इन वाइडर ट्यूब, ठीक है। तो ये जो V1 का वैल्यू है ये निकल के आएगा। Now volume of liquid flowing per second through the wider tube is equal to A1 V1। तो ये जो हमारा V1 का वैल्यू है इसके साथ एक A1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर A1 ये जो हम लोग का 2H रो एम जी बाय रो है A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 1/2, अब इसको अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है A1 इंटू A2 एक साथ में आ जाएगा, है ना, वी आर टेकिंग दिस इनसाइड दिस थिंग, है ना। और ये H रो एम जी ये जो चीज है दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P2, तो अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है जो आपको जानना है। अब टॉरिसेलीज थ्योरम क्या है, टॉरिसेली ने क्या बताया कि according to this theorem velocity of efflux, that is the velocity with which the liquid flows out of an orifice, that is a narrow hole, एक छोटा सा होल यहाँ पे अगर कर देंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड निकलने का है ना, दैट इज इक्वल टू दैट which a freely falling body would acquire in falling through a vertical distance equal to depth of orifice below the free surface of liquid। V क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर फ्री फॉल होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, इतने में आने में V का वैल्यू क्या हो जाता है, √2GH होता है, तो उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे होगा। तो वो हम लोग अभी देखेंगे, निकाल के प्रूफ करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज टॉरिसेलीज थ्योरम। Now consider an ideal liquid of density rho contained in a tank provided with a narrow orifice hole। तो इसमें जो लिक्विड है इसका डेंसिटी लेट्स से रो हम लोग मानते हैं, एंड A इज अ पॉइंट इन द लिक्विड एट लेवल ऑफ O। तो यहाँ पे जो लिक्विड के अंदर जो एक पॉइंट है इस O पॉइंट के लेवल, जहाँ पे ऑरिफिस है बाहर, उस पॉइंट पे जो अंदर लिक्विड में जो पॉइंट है उसको A से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट H इज द हाइट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अबव O। तो इसके ऊपर जो हाइट है फ्री सरफेस का लिक्विड O के ऊपर, दैट इज H। H dash is the height of the orifice above the bottom of the tank। ये H dash is above the bottom of the tank। P is atmospheric pressure, यहाँ पे जो प्रेशर P है यहाँ या फिर इस तरफ मानो। V is the velocity with which the liquid comes out of O। तो यहाँ पे जो लिक्विड जिस वेलोसिटी से निकल रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहेंगे, ठीक है। Now velocity of liquid at A inside the tank is 0। So ये जो लिक्विड का वेलोसिटी ए पॉइंट पे इनसाइड द टैंक, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा अंदर, है ना। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड ओ, है ना,
तो हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, एक लिक्विड के अंदर और एक लिक्विड के बाहर, 2 पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लिखेंगे तो P प्लस रो जी एच प्लस 0 इज इक्वल टू एट ए, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, P प्लस रो जी एच हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो प्रेशर है P प्लस रो जी एच हो गया, और जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, तो वेलोसिटी तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे। एट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे P प्लस, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है ये तो बस P ही है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जिस स्पीड से निकल रहा है, तो एट ओ। अब इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर देते हैं, P और P कैंसिल हो, P प्लस रो जी एच इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, रो और रो कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर इज 2gh, या v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो देखो यही चीज हम लोग कह रहे थे, टॉरिसेलीज थ्योरम यही तो कह रहा था कि जिस स्पीड से ये इससे बाहर निकलेगा दैट इज सेम एज, अगर कोई फ्री बॉडी, फ्री फॉल अगर किसी बॉडी का होता है h हाइट में, उस समय जितना वेलोसिटी अटेन करता उतने ही वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा, है ना। जैसे फ्री फॉल होता है तो वेलोसिटी अटेन कितना करेगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, अगर तुम्हें याद हो तो। भाई अगर h हाइट नीचे गिरना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ये h हो गया, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज 2gh और v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। तो फ्री फॉल में जो वेलोसिटी होगा h हाइट गिरने पे, उतने ही वेलोसिटी से लिक्विड इस कंटेनर के बाहर निकलेगा, अगर h डेप्थ के अंदर, h डेप्थ एक हमने ऑरिफिस बनाया है और उससे लिक्विड बाहर निकल रहा है। So if a body falls freely through a vertical height h, the velocity acquired by the body will be root under 2gh, which is same as given by equation 25. Thus Torricelli's theorem is established. Okay. Now, as the liquid escapes through the orifice, it has zero initial velocity in vertical direction at O. Okay. So, as this liquid escapes through the orifice, तो यहाँ पर से जो liquid escape कर रहा है, as the liquid escapes the orifice, it has zero initial velocity in vertical direction at O. इनिशियल वेलोसिटी इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा, जो भी वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में। इट फ्लोज आउट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोलिक जेट, तो ये बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला में ये पैराबोलिक जेट से, क्योंकि इसमें बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन बस वर्टिकल डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इट विल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल पैराबोला। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे आता है, तो वो पैराबोलिक शेप में ये बाहर निकलेगा। सो पैराबोलिक जेट एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम द टैंक आफ्टर टाइम t। मान लो ये s डिस्टेंस पे जाके टकराया t टाइम, तो t टाइम में टकराया, हमें ये पता है कि ये जो t टाइम, मतलब h डैश डिस्टेंस आने में t टाइम में कितना टाइम लगेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। सो h dash is equal to ut 0 half gt स्क्वायर, तो इससे 2h dash बाय g का रूट अंडर इज टाइम t, और इस टाइम तक ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करेगा, तो s इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी v इंटू टाइम t। v क्या है, रूट अंडर 2gh, और टाइम क्या है, रूट अंडर 2h डैश बाय g। तो अब दिस इज इक्वल टू, देखो ये g और ये g कैंसिल हो गया, 2 इंटू टू रूट टू, टू हो जाएगा 2 रूट अंडर h इंटू एच डैश। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द जेट इन टाइम t। क्लियर है बच्चों? यस सर। सभी को आ गया समझ? यस सर।
अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, at what speed will the velocity head of a stream of water be equal to 20 centimeter of mercury column? तो बेसिकली कह रहा है कि जो वेलोसिटी हेड है, वेलोसिटी हेड, वो जो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ये सब हम लोग कर रहे थे ना, तो वेलोसिटी हेड कह रहा है इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, सो अगर आप देखो बर्नौलीज थ्योरम, अगर आप देखते हैं, सो बर्नौलीज थ्योरम में जो हम लोग ये कहते थे कि प्रेशर प्लस, सो हम लोग ये कहते थे P बाय रो जी प्लस ऑफ H प्लस हाफ V स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा प्रेशर हेड होता था, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल हेड होता था, और ये हमारा वेलोसिटी हेड होता था। तो जो वेलोसिटी हेड है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, राइट। सो देखो, जो वेलोसिटी हेड है V स्क्वायर बाई 2G था वेलोसिटी हेड, सॉरी, तो ये जो हाफ V स्क्वायर बाई 2G है, तो इसमें सॉरी हाफ V स्क्वायर बाई G है, सॉरी। सो ये जो वेलोसिटी हेड है, this is V square by 2G. So velocity head is V square by 2G, which is equal to 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे प्रेशर में, 20 इंटू स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, तो 20 इंटू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर ऑफ Hg में दे रखा है मरकरी में, मरकरी का डेंसिटी 13.6 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 इंटू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इसके बराबर ये वेलोसिटी हेड होगा। सो वेलोसिटी हेड इज 20 इंटू 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज 20 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय 100 इज V स्क्वायर बाई 2G। अब स्पीड निकालना है, V स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 13.6, V स्क्वायर इज बाय 100, 20 इंटू 13.6 बाय 100 इंटू 20, so V square is equal to 13.6 into 2, 27.2, और V is equal to, sorry, 13.6 into 4 होगा ना, 13.6 into 4 is 54.4. V is root under 54.4. So 7.37 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास possessed by water at a point where the pressure is 10 gf per square mm and velocity is 0.1 meter per second and height of the water level from the ground is 0.20 meter. So अभी आप देखिए P is equal to 10 gram force per mm square. तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 10 kgf में, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1000. kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय mm स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -3 और का स्क्वायर 10 टू द पावर -6 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 10 to the power -3 raised to the power 2. ठीक है, so this is equal to 10 by 1000 9.8 डिवाइडेड बाय 10 to the power -6 है तो इंटू करेंगे तो 10 to the power 6 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा 10 to the power 6 हो गया. So this is 9.8 into 10 to the power 4. So 9.8 into 10 to the power 4 Newton per meter square. ठीक है, ये हमारा प्रेशर का जो वैल्यू है ये हो गया. So calculate the total energy per unit mass possessed by water at a point where the pressure is this much. Velocity v is equal to 0.1 meter per second. Height of water level from the ground is 0.20 meter. ठीक है, अब हम लोग को निकालना है टोटल एनर्जी पर यूनिट मास. सो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहला वाला जो हम लोगों ने किया था, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास होता है P बाय रो प्लस ऑफ GH प्लस ऑफ हाफ V स्क्वायर. पर यूनिट मास में अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को लिखें, सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ये है. सो ये जो है हमारा, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. GH जो है हमारा, दिस इज ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास. सो ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, एंड हाफ V स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है. So this is kinetic energy per unit mass. So total energy per unit mass हम लोग को निकालने बोल रहा है. P बाय रो करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है प्रेशर का वैल्यू 9.8 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है. सो ये हो जाएगा हमारा 98 जूल पर केजी P बाय रो का वैल्यू, ठीक है ना, ये P बाय रो का वैल्यू, ठीक है. अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली. GH का अगर हम लोग वैल्यू करें 9.8 इंटू 0.2 1.96 जूल पर केजी हो गया, और हाफ V स्क्वायर हाफ इंटू 0.1 का स्क्वायर, सो दिस इज 0.01 into 0.5
0.005 जूल पर केजी। अब टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, टोटल एनर्जी पर यूनिट mass will be equal to 98 plus 1.96 plus 0.005। इन सबको ऐड कर दो, so 99.965 हो जाएगा। जूल पर केजी। क्लियर है बच्चों? तो ये वो वाला स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम का कि टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इज कांस्टेंट। पर यूनिट वॉल्यूम करते तो P प्लस रो GH है ना, प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट करेंगे, वो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। इस पूरे को अगर रो से मल्टीप्लाई कर लें तो वो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now in this question, water at a pressure of 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square flows at 2 meter per second. ठीक है, so यहाँ पे P1 is equal to 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square. V1 is equal to 2 meter per second. Flows through a horizontal pipe of 0.02 meter square. A1 is 0.02 meter square cross sectional area, which reduces to A2 is 0.01 meter square. What is the pressure in the smaller cross section of the wire? हमें P2 निकालना है, पहले V2 निकालेंगे। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो, हम लोग को P2 निकालने के लिए V2 भी चाहिए, V2 पता नहीं है, तो V2 निकालने के लिए बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग यूज करेंगे। सो इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है जहां पे कि दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी और बर्नौलीज थ्योरम भी। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसको यूज कर लो, 0.02 इंटू 2 इज A2, 0.01 इंटू V2। सो इसको अगर हम लोग कट करेंगे 2 हो गया, तो V2 कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। वेलोसिटी हम लोग को यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बाय बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, so by Bernoulli's theorem we have P plus rho GH plus half rho V square is equal to constant। ठीक है, तो इसका मतलब ये पर यूनिट वॉल्यूम वाला हम लोग लिख रहे हैं, P1 plus rho GH1 plus half rho V square। बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रहने दो, P1 plus half rho V square रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 का वैल्यू हम लोग को पता है, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है,
और वाटर फ्लो कर रहा है ना, वाटर का डेंसिटी हम लोग को पता है 1000 होगा, इंटू V1 स्क्वायर, V1 हम लोग को दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हमें निकालना है हाफ इंटू 1000 इंटू 4 स्क्वायर हो गया. So this is 4 into 10 to the power 4 plus हाफ इंटू 1000 कॉमन ले लो, 4 माइनस 16 हो गया इज इक्वल टू P2. 4 माइनस 16 क्या हो गया, -12 हो गया. 4 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट, और माइनस ऑफ हाफ इंटू 4000, सॉरी 12,000, 6000 हो गया P2 का वैल्यू. So P2 is 40,000 minus 6,000. So that is 34,000 Newton per meter square, or 3.4 into 10 to the power 4 Newton per meter square. Is it clear बच्चों? So इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है जहां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम दोनों यूज होगा. ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस खूब करना है आपको. ठीक है बच्चों. लिख लिया बच्चों? सभी ने लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है reading of the pressure meter attached with a closed pipe is 3.5 into 10 to the power 5 Newton meter square per meter square. On opening the valve of the pipe, the reading of the pressure meter is reduced to 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Calculate the speed of the water flowing in the pipe. तो अभी देखिए, अब दो केस है. पहला, बिफोर ओपनिंग द पाइप, अगर जब हम पाइप को क्लोज करके रखे हुए उस समय हमारा जो प्रेशर P1 है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओपन ही नहीं है पाइप तो फ्लो नहीं कर रहा है वाटर ना. अब आफ्टर ओपनिंग द पाइप, जब हम लोग पाइप को ओपन कर लेते हैं उस समय हमारा जो प्रेशर है P2 इज 3 इंटू 10 टू द पावर 5, और वेलोसिटी लेट से V2 है जो कि हम लोग को निकालना है ना. वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब हो गया. ठीक ना, क्योंकि जो हम वॉल को ओपन कर रहे हैं हाइट तो चेंज करेगा नहीं, तो बाय बर्नौलीज थ्योरम
सो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 3.5 इंटू 10 to the power 5 प्लस 0 is equal to 3 into 10 to the power 5 half into 1000 into V2 square. So 3.5 से 3 को subtract कर लेंगे और मेरे 0.5 into 10 to the power 5 is half 1000 into V2 square. ये cancel हो गया, 100 बचा. 2 को इधर 2 into 0.5 1 हो जाएगा. 100 is equal to V2 square, तो V2 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो जैसे ही वॉल्व को ओपन करेंगे, स्पीड ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aeronautical engineer observes that on the upper and the lower surface of the wing of an aeroplane, the speed of the air are 120 meter per second and 90 meter per second. So V1 is 120 meter per second and V2 is equal to 90 meter per second respectively during flight. What is the lift of the wing of aeroplane if its area is 3.2 meter square? So यहाँ पे देखो P1 हम लोग निकाल लेंगे. P1 और P2 बेसिकली हम लोग को डिफरेंस निकालना है. लिफ्ट के कौन प्रोवाइड करेगा? जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होता है, राइट, वहां पे प्रेशर हमने देखा कि वो कम होता है, राइट. सो अब यहाँ पे नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो लिफ्ट प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है P2 minus P1 into area of cross section A will provide the lift. ठीक है, this is the force provided to lift the aeroplane. ठीक है, P2 minus P1 into A. तो बेसिकली अब बाय बर्नौलीज थ्योरम just a second बच्चों. Sorry बच्चों. So by Bernoulli's theorem we have P1 plus हाफ रो, बिकॉज हाइट का तो डिफरेंस है नहीं ऊपर और नीचे, तो हम लोग ऑलमोस्ट सेम मानेंगे. हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर. डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में. देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. ठीक है, so which is equal to half into 1.29 into V1 square is 120 square minus of 90 square.
सो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग. सो 120 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर 6300 into 1.29 divided by 2. So 4063.5 हो गया. 4063.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमें प्रेशर का डिफरेंस आ गया P2 माइनस P1. तो अब उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिफ्ट निकल जाएगा. सो लिफ्ट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू ए. P2 माइनस P1 हमने निकाल रखा है 4063.5. सो P2 माइनस P1 ये हमने निकाल लिया 4063.5 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 3.2 यहाँ पे, है ना. A इज इक्वल टू 3.2 मीटर स्क्वायर. सो 4063.5 इंटू 3.2 कर लेंगे. So this is 13003.2 Newton. So this is the lift which is provided due to the difference in speed above and below the aeroplane wings. Clear है बच्चों? Is it clear to everyone? लिख लिया बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now the next question है, ये कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड. वर्टिकल डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर. Assuming that the density of the blood to be this much, friction is to be neglected. तो जो H2 minus H1 जो है difference in height, this is 40 centimeter, 0.4 meter हो गया. Density rho is 1.04 gram per centimeter cube. ठीक है, तो इसको kg per meter cube में convert करेंगे 1.04 into 10 to the power 3 हो गया 1040 kg per meter cube हो गया. अब प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड. सो हम लोग को बेसिकली देखिए P1 प्लस रो जी H1 हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लिख रहे हैं प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर. P1 minus P2 rho g H2 minus H1 plus half rho V2 square minus V1 square. ठीक है, अब ये देखिए ये कह रहा है कि फ्रिक्शन इज टू बी नेग्लेक्टेड. जब फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी दोनों में सेम होता है, V2 और V1 सेम होता है. सो सिंस V2 is equal to V1,
तो हमारा ये जो हो जाएगा P1 माइनस P2 इज रो जी H2 माइनस H1। तो ये प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 रो है हमारा 1040, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू H2 माइनस H1 जो है 0.4 ले लेंगे। सो वी हैव 1040 इंटू 10 इंटू 0.4, so 4160 Newton per meter. So this is the pressure, minimum pressure which is required for the blood from the heart to reach the top of the head. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग कर रहे थे, जहां पे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम दोनों यूज होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसको करोगे और मुझे भेजोगे करके, कॉपी में फोटो भेजोगे। और इसका जो आंसर है जस्ट फॉर यू टू मैच, ये आंसर नहीं बताएं, चलो बता देते हैं, बीच का नहीं बताएंगे, मतलब वेलोसिटी नहीं बताएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। फाइनल जो प्रेशर आता है दिस इज, हम लोग को स्पीड एंड प्रेशर एट द सेकेंड फ्लोर निकालना है। तो जो स्पीड एट द सेकेंड फ्लोर V2 is 4.4 meter per second and pressure at the second floor is 2.43 into 10 to the power 5 Newton per meter square. So this is the answer. So solve करोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले लगाओगे, फिर बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे, सॉल्व करके भेजोगे मुझे, ठीक है बच्चों? अभी ही बैठ के कर लेना, जितने क्वेश्चंस किए हैं उसके हिसाब से। क्लियर है? So